Hello everyone. Today we are going to learn a new lesson. Name of the lesson is Experiments with Water. जादू देखनी है आपको। जादू पसंद है ना। तो आज मैं आपको एक जादू दिखाने वाला हूँ। वो है बॉटल का जादू। ये देखिए। अभी देखिए मैं एक जादू से आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से इस बॉटल से पानी बाहर निकलेगा। देखना चाहोगे? तो ये देखिए अभी मैं इस बॉटल को ऊपर की तरफ से पकड़ता हूँ और जैसे ही मैं एक जादुई मंत्र बोलूंगा इसमें से अपने आप पानी निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए बॉटल। 22 का वाटर को। 22 का वाटर शो। मजा आया आपको? तो इस तरह का जादू आप भी कर सकते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे करना है। ठीक है, 22 का बॉटल को वाटर में मैं ट्राई करूंगा थोड़ा सा है। तो आप इसको देख पा रहे हैं, हनी जो है कहाँ चला गया है? एकदम नीचे। अब मैं इसमें थोड़ा डालने वाला हूँ ऑयल। मैंने यहाँ ऑयल लिया है, उसको मैं डालने वाला हूँ। तो ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा है जो हमने हनी डाला था वो तो चला गया नीचे और बीच में रह गया वाटर और वाटर के ऊपर ऑयल। है ना ये भी जादू? कुछ देर बाद उस वाटर को जब हिलाया गया तो जो हनी था वो वाटर में इस तरह से मिक्स हो गया और सिर्फ हमें दो लेयर से दिखाई दिए, एक हनी वाली और दूसरी ऑयल वाली। नेक्स्ट, what floats, what sinks? Let's see. So here is a story of little Aisha. Let's read now. Aisha was waiting for dinner. Today, Ammi was making her favorite food, puri and spicy potatoes. Aisha was watched as her mother rolled out the puri and put it in the hot oil. She saw that at first the puri sank to the bottom of the pan. As it puffed up, the puri came up and started floating on the oil. One puri did not puff up and did not float like the others. Like this. On seeing this, Aisha took some dough and rolled it into a ball. With his little brother. First, she flattened it and put it in a bowl of water. And next, his brother make a ball and put it in water. See this video. Both the times it sank to the bottom and stayed there. Oh, look at this. Now think what would happen if Aisha put a puff puri in a bowl of water. Would it sink or float? Think about this. Let's see now. What will happen? Puffed puri in a bowl of water
would float as it is lighter than water. However, after some time, it would start to sink due to absorption of water by the dough of puri. Now, you put a steel plate on water. Would it sink or float? What would happen to a spoon? Let's see. A steel plate would float on water as it is lighter than water. On the other hand, a spoon which is heavier than water would sink. The size of body does not decide whether it floats or sinks. It is the mass and volume of the body that collectively decide whether it floats or sinks. Then, would the cap of a plastic bottle sink or float on water? Think about that. Yes, watch this video now. The cap of a plastic bottle would float on water as it is lighter than water. Yes. Now, in the evening, Aisha went for a bath. She had just come out when her mother called, Aisha, you have dropped the soap in the water again. Take it out and put it in the soap case. What will happen now? Look this video. Aisha was in a hurry and the soap case fell out of her hands. It started floating on water. Aisha gently put the soap in the soap case. She saw that the case continued to float even with the soap in it. Have you seen that something float on water while others sink? Think how this happens. The poem here raises such questions. Why, oh why? A wooden boat in water float, but a needle will sink. Why does this happen? Let me think. An iron ship will also float, though it's much heavier than my boat, but a needle light as a leaf, thin as a pin, will sink right in. Why does this happen? Let me think. है ना, ये कितनी मजेदार बात है कि एक वुडन बोट होती है वो फ्लोट करती है, बट एक छोटी सी नीडल होने के बावजूद वो सिंक हो जाती है। इतनी बड़ी आयरन शिप भी फ्लोट करती है, लेकिन वो इतनी छोटी सी पिन भी क्या हो जाती है, अंदर सिंक हो जाती है। Why does this happen? Let me think. Yes, you have to think that. Now, do this and find out. Do this experiment in groups of 4 friends. Which experiment? Each group will need a big pot filled with water and the things listed in the table. We put each thing one by one in water and observe it. First, a bowl, empty bowl, and after putting in it 6-7 coins. First you have to guess before I did, and then next table I saw when I did it. So think about first picture. It will sink or float. Now see. Empty bowl is floating. Yes. And what about after putting 6-7 coins? It is also floating. Okay, now next. Iron nail and a matchbox. Guess about iron nail and then see. Oh, it's saying. And what about matchbox? It is floating. Yes. Now see this picture.
First is empty bottle, second one is full of water, and third a half bottle. What will happen? Guess. Empty bottle will float, full bottle sink, and half bottle half sink and half float. Yes. Now you have to find out from the other groups which things floated and which sank in the water. After doing the experiment, fill in the blanks. Okay. Then next, what is density? Comparing the density of clay and water. Okay, let's see this video. So I made this clay first. मैंने इसमें डाल के देखा तो ये पूरा क्या हो गया, अंदर सिंक हो गया। तो चलिए देखते हैं अभी इसको आधा करने के बाद क्या होता है। ये सिंक होगा या फ्लोट होगा। आधा करने से इसका वेट भी हाफ हो चुका है, तो ये भी क्या हो गया, सिंक हो गया। तो चलिए इसको और भी क्या करते हैं, और भी आधा करके देखेंगे क्या होता है। आधे से आधा करके देखना है हमको। तो हम यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि डेंसिटी ये किस पर निर्भर होती है, किस पर डिपेंड होती है। उसके वेट पर होती है या उसके साइज पर होती है या किस चीज पर होती है। अगर वेट पर होती तो हम उसे कम कर रहे हैं। देखिए छोटे से छोटा करके डाल रहा हूं, मैं कम कर रहा हूं एक में, फिर भी ये डूब रहा है। इसका क्या मतलब हो रहा है कि इसके वेट पर वो निर्भर नहीं कर रही है और ना ही उसके साइज पर। देखिए मैं कितना भी छोटा कर रहा हूं तब भी ये क्या हो रहा है, अंदर जा ही रहा है, जा ही रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि वो हैवियर है उस वाटर से। उसका छोटा से छोटा पार्ट भी वाटर से हैवी है, इसलिए वो डूब रहा है। So here another way to compare the density of clay and water. Clay is more dense than water, so the clay is still dense, and no matter what size clay is. Now look at this picture. What is density? ये दोनों भी सेम आदमी है, दोनों के सर पे सेम साइज है बालों के लिए, बट यहाँ पर आपको पहचानना है which is more dense. इजी है, आपको पहचानना है कि इसमें घने बाल किसके हैं। which is more dense? Obviously this one more dense. तो ये इससे आप समझ जाओगे कि कौन सी चीज फ्लोट करेगी और कौन सी सिंक। ठीक है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो सिंक हो जाएगी, जिसकी डेंसिटी कम है वो फ्लोट हो जाएगी। तो डेंसिटी को समझने के लिए ये एक बार और पिक्चर देखिए। सेम साइज की बस है दोनों भी, लेकिन एक में देखिए कितने दूर दूर लोग बैठे हुए हैं, तो ये क्या है, डेंसिटी इसकी कम है। और नीचे के पिक्चर में देखिए उतने ही प्लेस में ज्यादा से ज्यादा लोग बैठे हैं, मतलब वो मोर डेंस क्या है, डेंसिटी उसमें मोर है और बहुत घना जो है उसमें जो पार्टिकल्स बिठाए गए हैं। तो ऐसी कोई भी चीज हो जो जिसमें पार्टिकल्स ज्यादा डेंस हो तो वो अपने आप क्या हो जाएंगी, सिंक हो जाएगी। इस पिक्चर से आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा कि सेम गिवन अमाउंट ऑफ स्पेस, इफ देयर आर मोर थिंग्स वी से दैट इज डेंसर। Density is simply the measure of how compact the mass in a substance is. किसी भी चीज में कितना कूट कर भरा गया है कोई भी जो सब्सटेंस, उस पर डिपेंड करती है उसकी डेंसिटी। अगर ज्यादा भरा है तो उसकी डेंसिटी ज्यादा है, और कम है,
कम भरा हुआ है तो उसकी डेंसिटी कम होगी। जैसे कि समझ लीजिए कि ऊपर कोई लकड़ी का टुकड़ा है और नीचे आयरन का टुकड़ा, तो लकड़ी के टुकड़े की जो है डेंसिटी वो कम होती है, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी दूरी पे होते हैं, जबकि आयरन में वो बहुत कूट कूट के भरे होते हैं, तो उसकी जो डेंसिटी अपने आप ज़्यादा हो जाएगी और वो वाटर में सिंक हो जाएगा। नाउ सी दिस वीडियो। तो अभी हम करने जा रहे हैं एक दूसरा एक्सपेरिमेंट वाटर के साथ ही। मैंने यहाँ पर 2 ग्लास वाटर लिए हैं। ये देखिए, ये क्लीन वाटर है, इसमें कुछ नहीं है, और इस वाटर में मैंने डाला है थोड़ा सा नमक। ये देखिए, आप थोड़ा सा देखेंगे तो नीचे इसके नमक बैठा हुआ है, जबकि ये वाटर क्लीन है। दिख रहा है आपको? ठीक है, तो अब मैं इसके अंदर आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाने वाला हूँ। मैं इसमें डालूंगा एग बारी बारी से। इधर वाला जो है ग्लास वो है सॉल्टी वाटर और ये है अपना फ्रेश वाटर। तो मैंने लाया एग, फर्स्ट में डालूंगा विदाउट सॉल्ट वाटर में। तो ये देखिए, ये अंदर डूब गया। अब मैं दूसरा एग डालूंगा इस सॉल्टी वाटर में। ये देखिए डिफरेंस, एक अंडा डूबा हुआ है और दूसरा ऊपर तैर रहा है ना जादू? तो ये बहुत ही इजी तरीका है, ये आप भी अपने घर में आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं। शर्त ये है कि सॉल्ट थोड़ा ज्यादा डालना है आपको, ताकि वो जो एग है वो ऊपर आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, लेमन के साथ भी कर सकते हैं, एग के साथ कर सकते हैं, और आपको जो जो ट्राई करना है वो आप उसमें डालकर देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि ऐसा क्यों हुआ। What do you think the lemon floated in salty water? Because when salt is added to water, the water gets heavy as compared to a lemon or egg. The salty water is heavier, so the lemon that is lighter floats on salt. Water that is heavier. Okay? Now see the Dead Sea. Yes, generally all oceans and seas have salty water. आपने टेस्ट किया होगा, कोई भी समंदर का पानी खारा होता ही है, but the saltiest of all is the Dead Sea. How salty? Imagine 300 grams of salt in 1 liter of water. Oh my god! 1 लीटर बॉटल में 300 ग्राम मतलब पाव केजी से भी ज्यादा जो है नमक। Would you be able to even taste such salty water? Never. It would be very bitter. Interestingly, even if a person does not know how to swim, she would not drown in this sea. Let's see this video. तो इस डेड सी में आपको जो है इतना ज़्यादा नमक देखने मिल सकता है। अगर आप नीचे भी देखेंगे, कोई पत्थर उठाएंगे तो उसमें भी आपको नमक देखने मिल सकता है। तो सोचिए, इतना ज़्यादा अगर नमक है तो वो पानी कितना खारा होगा। तो ऑटोमेटिकली जो है उसकी जो डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी और उसमें हम इजीली क्या कर सकेंगे, फ्लोट कर पाएंगे। इवन हमें स्विमिंग नहीं आती हो तब भी हम अंदर नहीं डूबेंगे, क्योंकि वो जो है पानी उसकी जो डेंसिटी है उस सॉल्ट की वजह से बहुत बढ़ चुकी है। ये देखिए, इस तरह से ये सोने के बाद भी नहीं डूब पा रहा है इस वाटर की डेंसिटी की वजह से। इसके आसपास में आपको बहुत सारा नमक दिखाई देगा, जो कि आमतौर पे सभी समंदर पे आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन इस डेड सी में आपको दिखाई देगा। ओके, ये ऐसा क्यों हुआ? रिमेम्बर द लेमन और एग यू फ्लोटेड इन सॉल्टी वाटर? यस, एग्जैक्टली ऐसा ही यहाँ पर हो रहा है। जैसे वो एग पानी में फ्लोट कर रहा था, उसी तरह ये जो आदमी है वो भी फ्लोट कर रहा है। ठीक है,
Then next, what dissolved and what did not. On Sunday, Aisha's cousin brother Hamid came to her house to play. As soon as he came, he asked his aunt to make his favorite shakarpara or a sweet dish. Ammi said, "Let me come back from the market, then I will make some for you." "Why don't you help me?" "Take 2 glasses of water and put a bowl of sugar in it. Mix it till it dissolves." Hamid thought, "Let me finish this for fast, then I will watch TV." अब उसको जो है शक्करपारे खाने थे, उसकी आंट को उसने बोल दिया मुझे खाने हैं। आंट ने बोला कि मैं अभी मार्केट में हूँ, जब वापस आऊँगी तो बना दूँगी। तो ऐसा क्यों नहीं करते तुम, मेरी हेल्प क्यों नहीं करते? तो जो आंट ने उसको हमीद को काम बोल दिया कि तुम क्या करो, थोड़ा सा टेक 2 ग्लास ऑफ वाटर, 2 ग्लास पानी लो एंड पुट अ बाउल ऑफ शुगर, और उसमें 1 बाउल शक्कर डाल दो और उसको अच्छी तरह से मिक्स करो। तो अब हमीद को पता था मिक्स करने को टाइम लगने वाला है, तो उसने सोचा मैं जल्दी इसको फिनिश करता हूँ ताकि मैं जल्दी से टीवी देख पाऊँगा। तो अब सजेस्ट सम वेज टू हमीद फॉर क्विकली डिसॉल्विंग शुगर, तो वो अपना काम जल्दी से ख़त्म करे, इसके लिए आप उसे कुछ सजेस्ट कीजिए जिसकी वजह से वो जो है अपना काम जल्दी से फिनिश कर पाए और टीवी देख सके। क्या कर सकते हैं बताइए? हम उसे अच्छी तरह से हिलाएंगे, एक नंबर 2, हम शुगर को अच्छी तरह से क्रश करेंगे, पीसी हुई शुगर डालेंगे तो वो जल्दी डिज़ोल्व हो जाएंगे, या फिर उसे हो सकता है हम गर्म कर देंगे, तो गर्म करने से भी वो जल्दी से क्या हो सकता है, डिज़ोल्व हो सकता है। तो ये और कुछ जो मेथड्स है आप सोच सकते हो जल्दी काम फिनिश करने के लिए। नाउ डू दिस एक्सपेरिमेंट। व्हाट? फर्स्ट मेक ग्रुप्स ऑफ 4 friends. For the experiment, you will need 4-5 glasses or bowls, spoons, water, and things listed in the table. Okay. After that, take some water in each glass. Now, try. What try? Now try to dissolve one thing in one glass. Observe what happened and note in the table. आपको observe करना है क्या क्या things कौन कौन सी लगने वाली है आपको। Salt है, चॉक पाउडर है, 1 स्पून मिल्क है और ऑयल है। तो आपको देखना है डिड इट डिजॉल्व और नॉट। फर्स्ट कॉलम में आपको लिखना है डिजॉल्व और नॉट, एंड जो नेक्स्ट कॉलम है उसमें आपको लिखना है व्हाट हैपेंड आफ्टर कीपिंग फॉर 2 minutes। 2 मिनट रखने के बाद उसमें क्या चेंजेस हुआ वो आपको उस बॉक्स में लिखना है। देखिए अभी फर्स्ट ग्लास में मैं डाल रहा हूँ सॉल्ट, क्या होता है इसको जब मैंने डाल दिया, डिड इट डिसॉल्व और नॉट, आपको फर्स्ट बॉक्स में टिक मार्क करना है, राइट। ओके, फर्स्ट इसमें मैंने डाली है शुगर। देखिए शुगर डालते ही वो सीधा नीचे गई है, ऊपर हमें जमा नहीं दिखाई दे रही है, और कुछ देर बाद अभी क्या होगा, ये डिसॉल्व होगी या नहीं ये हम देखेंगे। नेक्स्ट में मैं डाल रहा हूँ चॉक पाउडर, एक ब्लू कलर का चॉक जिसको मैंने पीस कर अभी बारीक किया है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। देखिए आपको वो नीचे जाते हुए दिखाई दे रहा है और बहुत सारा ऊपर भी बैठ गया है, तो इसे भी हमको ऑब्जर्व करना है क्या होता है इसके साथ आफ्टर 2 minutes। ठीक है, और जो थर्ड ग्लास है उसमें अब मैं डालने वाला हूँ ऑयल, 1 स्पून ऑफ ऑयल। देखिए ऑयल तो नीचे जा ही नहीं रहा है, पूरा के पूरा ऊपर ही बैठ गया है, दिख रहा है ना हमें। और लास्ट में जो है मैं यहाँ डाल रहा हूँ मिल्क, 1 स्पून मिल्क। देखिए ये तो अपने आप ही दिख रहा है, 1 मिनट से भी कम डालते ही ये डिसॉल्व हो चुका है। अभी इसको हमें देखना है कि क्या होता है इनके साथ, 2 मिनट तक हमें इसको ऑब्जर्व करना है।
First, could you see the salt after dissolved in water? No. देखो चॉक पाउडर तो साफ दिख रहा है, डिजॉल्व हुआ ही नहीं है, ऑयल भी ऊपर ही है और मिल्क जो है ये पूरी तरह डिजॉल्व हो चुका है, हुआ है ना? यस। तो अब हमें ये देखना है कि इनमें और क्या बदलाव हो सकते हैं, ये पूरी तरह डिजॉल्व होंगे या नहीं। देखिए 2 मिनट के बाद का सीन है ये। तो फिर से हम देखेंगे इस सॉल्ट वाले ग्लास को, तो इसके एंड में भी जो नीचे भी बॉटम में देखिए बिल्कुल भी सॉल्ट हमें नजर नहीं आ रहा है, अंदर भी नहीं है, मतलब ये पूरी तरह डिजॉल्व हो चुका है, पानी में मिक्स हो चुका है। बट सेकेंड ग्लास के बारे में ऐसा नहीं है, इसमें अभी भी पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं चॉक पाउडर के नीचे की तरफ भी और ऊपर की तरफ भी। ये देखिए नीचे भी जमा है इसके पार्टिकल्स और उतने ही पार्टिकल्स ऊपर भी हमें दिखाई दे रहे हैं, मतलब चॉक पाउडर डिजॉल्व नहीं हुआ। और तेल के बारे में क्या है, व्हाट अबाउट ऑयल? इट इज फ्लोटिंग ऑन वाटर। क्यों फ्लोट कर रहा है? क्योंकि इसकी जो डेंसिटी है वो मैटर करती है, उसे फ्लोट करने में डेंसिटी कम है तो फ्लोट कर रहा है। और मिल्क को तो आपको पता ही है, उसमें जो वाटर इजीली जो है मिक्स डिजॉल्व हो जाता है, उसी वजह से तो हमें पता नहीं चलता है कि मिल्क मैन ने हमें प्योर दूध दिया है या नहीं। होता है ना कभी कभी ऐसा भी, तो इसी का फायदा अक्सर उठाया जाता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि could you see the salt after it dissolved in water? No. Does that mean that now the water does not have salt? If it has, then where is the salt? ऐसा तो नहीं बोल सकते कि उसमें सॉल्ट नहीं दिख रहा है, इसका मतलब उसमें सॉल्ट नहीं है। सॉल्ट होता है ना उसमें, तो कहाँ गया वो अच्छी तरह से क्या हो चुका है, we could not see the salt, but this is because as soon as salt is added into water, it starts breaking down into smaller particles that are difficult to be seen by naked eyes. These salt particles get inside the water. At this stage, the salt starts dissolving in the water, and a stage comes when the entire salt gets dissolved. Thus, no more salt could be seen. Okay, so now next, what the difference did you see in the water with salt and the water with chalk powder after keeping for some time? Yes, which of the two would you be able to separate from the water by staining with a cloth, salt or chalk powder? क्या लगता है आपको कि इन दोनों को छानने से हम किसे सेपरेट कर पाएंगे आउट ऑफ द टू सब्सटेंसेस? लेट्स सी। यहाँ मैंने नीचे 2 ग्लास रखे हैं और ऊपर एक कपड़ा रखा है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, सॉल्ट का जो वाटर है वो और चॉक का जो वाटर है वो दोनों भी इसमें अभी डालने वाला हूँ। देखते हैं क्या होता है। आपको भी नीचे कपड़ा रख के करना है, वरना सारा पानी घर में हो जाएगा और आपको मम्मी की डांट पड़ेगी अलग से, ठीक है? तो देखिए मैंने ये जो है दोनों भी ग्लास का पानी, जो सॉल्टी वाटर है और जो ये चॉक वाला वाटर है, दोनों को मैंने डाल दिया है। अब मैं ये देखने जा रहा हूँ कि इनमें से हम किसको अलग कर पा रहे हैं या कर सकते हैं। तो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि सॉल्ट के पार्टिकल्स हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जबकि चॉक के पार्टिकल्स ऊपर ही हमें दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए मैं अभी इसे उठा के देखता हूँ क्या नज़र आता है हमें। तो हमें ये नज़र आ रहा है कि जो चॉक पाउडर है
वो क्लियरली विजिबल हो रहा है. Out of the two substances, we would be able to separate chalk powder from water by staining with a cloth. This is because salt particles cannot be seen in water, whereas chalk powder can be. ये देखिए किस तरह मेरे हाथ को लग रहा है और सॉल्ट तो दिख भी नहीं रहा है. तो ये इस तरह से हमें नीचे का पानी मिला. Now next, while doing the experiment, Aisha and Hamid had an argument. Aisha felt that after stirring it, the oil dissolved in water. Hamid did not agree. He said, "Look, the tiny yellow oil drops can still be seen in the water." Aisha said, "Let's wait for some time and then see." So, do you think the oil got dissolved in the water? Yes? No? Why do you think so? Oil will not get dissolved in water. Yes, हमने अभी देखा है कि वो डिजॉल्व हो ही नहीं रही थी, लेकिन आयशा को लगा वो हो जाएगी. तो चलिए अभी देखते हैं. उन्होंने फिर एक लगाई रेसिंग. Aisha put drops of oil in the lid of a tiffin box. Next to that, she put 2 drops of water and 2 drops of sugar solution. Then she tilted the lid. ये देखिए, ये है शुगर वाला, ये है फ्रेश वाटर. And then she tilted the lid. She saw some drops slide down quickly while some were left behind. You also try to do the same and then tell which drop went ahead. क्या लगता है आपको कौन आएगा फर्स्ट? ये देखिए, फ्रेश वाटर फर्स्ट आ चुका है, सेकेंड आ गया है शुगर वाटर, रेस के नतीजे आ गए हैं. शुगर वाटर सेकेंड आ चुका है और थर्ड जो आए हैं हमारा मिस्टर ऑयल. ये देखिए सबसे लेट. ये सब किस वजह से हुआ आपको क्या लगता है? उसकी डेंसिटी की वजह से. फ्रेश वाटर सबसे फास्ट नीचे आ गया, उसके बाद शुगर वाटर सेकेंड नंबर पे, और ऑयल तो अभी भी नीचे नहीं उतरा है, वो थर्ड आ गया है. ठीक है. नाउ वेयर डिड द वाटर गो? One day, Aisha's mother put some water to boil on the stove for making tea. She got busy with something and forgot about it. When she remembered and came to check, she found only a few drops of water left in the pan. देखिए, अभी प्लेट रखने के बाद हमें पता चलेगा कि क्या होता है इन वाटर के साथ जब हम बॉईल करते हैं. तो ये देखिए, प्लेट के नीचे इस तरह से आपको ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे. वो कैसे बन गए? जो वाटर है बॉईल होने के बाद वो वाटर वेपर में चेंज हो गया और वो उड़ने की कोशिश कर रहा था, तभी प्लेट को लग गए और फिर प्लेट को लग के वो वापस वाटर में कन्वर्ट हो गए. तो इस तरह से इस पैन का पानी तो कम हो गया, वो उड़ गया. देखिए, वहां मैंने मार्क करके रखा है, उतना पहले वाटर था, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो वाटर वहां से उतना कम हो गया. तो कहाँ गया वो सारा वाटर? वो वेपर बनके उड़ गया, है ना. द वाटर फ्रॉम द पैन गॉट इवेपोरेटेड एंड कन्वर्टेड टू वेपर. चिट्टी बाबू एंड चिन्ने बाबू, डू यू रिमेम्बर? They kept their mango jelly under the sun in order to dry it. At your house, what things are made by drying in the sun? आप बता सकते हैं कौन कौन सी चीजों को आपके घर में रखा जाता है? पापड़ और जो है चिप्स वगैरह है, इनको हम क्या करते हैं, सन में ड्राई करने को रख देते हैं ताकि इनके अंदर का जो है पानी वो निकल जाए. ठीक है. Now next point is Dandi March. What is Dandi? Dandi is
is a place of Gujarat. Now let's see what is in that march. This incident took place in 1930 before India became independent. For many years, the British had made a law that did not allow people to make salt themselves. They had also put a heavy tax on salt. जब अंग्रेजों ने भारत पे कब्जा किया तो उन्होंने यहाँ पर बहुत जुल्म किया था। उसी में से तब उन्होंने क्या किया था, 1930 में एक लॉ बनाया जिससे कोई भी सॉल्ट नहीं बना सकता था, इवन घर के खाने के लिए भी नहीं। तो इस तरह का उन्होंने लॉ बनाया। They had also put a heavy tax, और टैक्स भी लगाने लगे वो नमक पर। By this law, people could not make salt even for use at home. How can anybody live without salt? Gandhiji said, how can a law not allow us to use freely what nature has given? तो गांधी जी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने बोला कि नेचर ने हम सबको जो दिया है वो भी चीज़ हमें फ्रीली नहीं यूज़ करने दे रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। सो गांधी जी with several other people went on a yatra, means long walk, from Ahmedabad to the Dandi seashore in Gujarat to protest against this law. तो ये कानून तोड़ने के लिए गांधी जी अहमदाबाद से दांडी तक पैदल निकले अपने सैकड़ों सपोर्टर्स के साथ ये लॉ तोड़ने के लिए। देखिए इस पिक्चर में दिख रहा है गांधी जी क्या कर रहे हैं, नमक का कानून तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। Now, do you know how salt is made? Let's see this video. How salt is made. The sea water is collected in shallow beds dug in the sand. Water is allowed to dry in the sun. After the water dries, the salt remains on the ground. तो ये सारा फिर salt क्या करता है, 20 डेज के बाद इसे कलेक्ट करके ले जाया जाता है इसको फिल्टर करने के लिए। बड़ी बड़ी कंपनीज में ले जाया जाता है इसको, और फिर वहाँ उसके साथ एक अलग अलग प्रोसीजर के साथ उसको भेजा जाता है उसे क्लीन करने के लिए। उसके अंदर का जो भी कचरा है वो साफ किया जाता है, उसे अच्छी तरह से धोया जाता है, उसमें जो भी गंदगी वगैरह हो वो सब क्या होती है इस तरह से साफ की जाती है। और फिर एक अच्छा जो नमक हमारे पास बचता है उसको अलग अलग प्रोसीजर से आगे की तरफ भेज दिया जाता है, और फिर इसमें मिलाया जाता है आयोडीन। ये देखिए सेम अमाउंट में आयोडीन यहाँ मिक्स हो जा रहा है, और फिर आयोडीन मिक्स होने के बाद इसको आगे की ओर बढ़ा दिया गया। ये आगे आगे जा रहा है, और इसे इसमें अभी भी पानी की जो है नमी होती है, ये वेट होता है, तो इसे गर्मी से निकाला जाता है और फिर अलग अलग वाइब्रेट किया जाता है, तो बड़े दाने छोटे दाने सब अलग होते हैं, और फिर एक शुद्ध नमक हमारे सामने आ जाता है, और फिर उन्हें बैग्स में पैक किया जाता है। 100 kg, 50 kg, 1 kg, 500 ग्राम्स, इस तरह के जो पैकेट बन के हमारे घरों में आ जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये वीडियो भी आपको पसंद आ गई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।